دونوں نے مل کر جو ہے وہ ایک نئی چیز کی بنیاد رکھی. اگر آپ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ اتنی پاپولر ہوئی, جب یہ اگلے ایک سال کے اندر یہ جب یہ پاپولر ہوئی اور یہ کتاب سامنے آ گئی, اس کتاب کا جو مصنف ہے ٹیڈمن چینگ ہے, اور اس کتاب کو اس کی 2005 میں کتاب آئی تھی, اس نے پوری یہ جو میں نے آپ کو جو ہسٹری سنائی ہے ایموشنل انٹیلیجنس بیسڈ مائنڈفلنس کی, یہ ساری کی ساری جو اس کے اندر موجود ہے. اس کتاب کا ترجمہ بھی جو ہے میں 1 سال پہلے کر چکا ہوں, تو اس میں بھی جو اس نے پورا کورس جو ہے وہ مختصر طور پہ اس نے بیان کر دیا ہے. یہ چیز جب اتنی مشہور ہوئی تو پھر جو ہے مائکروسافٹ نے سب سے پہلے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی ہماری کمپنی میں یہ ایشوز ہیں, تو بھائی اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو اپنے ہاں ہم یہ کورس کروا دیتے ہیں. اس کے بعد پے پال, امیزون, اور آج پوری دنیا میں 2015 میں یو کے گورنمنٹ نے اسکولوں کے لیے لازمی کر دیا ایک پیریڈ مختص ہے جس میں بچے جو ہے مائنڈفلنس کو پریکٹس کریں گے. اور اس کو پوری دنیا میں گوگل سمیت انہوں نے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹس بنا رکھے ہیں میڈیٹیشن کے لیے, جس میں وہ لوگ جا کر جو ہے نتھنگ بٹ مائنڈفلنس میڈیٹیشن کو پریکٹس کرتے ہیں. ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر آدھے سے پون گھنٹے کے بعد جو ہے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اپنا کام چھوڑ دیں, اس کام کو چھوڑنے کے بعد جو ہے وہ اس کو آپ مائنڈفل میڈیٹیشن کو آپ پریکٹس کریں گے. یہ اتنی ضروری چیز ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو غذا دے رہے ہیں, ہم اپنے دماغ کو غذا دے رہے ہیں. جو اخروٹ وغیرہ نا وہ آپ کے دماغ کو غذا دیتے ہیں, آپ کے ذہن کو غذا نہیں دیتے. روح کو نہیں دیتے. نہیں, روح الگ چیز ہے. میں ذہن کی بات کر رہا ہوں, میں مائنڈ کی بات کر رہا ہوں, سول کی بات نہیں کر رہا. تو ہمارا جو مائنڈ ہے اس کی جو واحد غذا ہے وہ آکسیجن ہے, اور اس کو جو ہے پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے. تو پوری دنیا میں اس وقت اسی وجہ سے بقول میکنسی کمپنی کے جو 5ویں نمبر پر سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ مائنڈفلنس پر ہو رہی ہے. اور اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا مجھے, میرے اور آپ کے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے جس کا دماغ, جس کا ذہن جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اس کو کتنی زیادہ ضرورت ہے اپنے آپ کو صحت مند, ذہنی طور پر صحت مند رکھنے کے لیے مائنڈفلنس. تو اس کو اپنی زندگی کا, یہ آپ کا لائف اسٹائل, یہ آپ کو روزانہ پریکٹس کرنا ہے. مائنڈفلنس کا جو کورس ڈاکٹر جان کبرزی نے بنایا, اس میں اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے اس نے اس کو میڈیفائی کر دیا. بعض لوگ اس سے کہتے ہیں, جب میں وپشنا کی جو ہے وہ جنگل کے اندر اپنی 12 دن کی کہانی سناتا ہوں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اب ہر آدمی تو نہیں جا سکتا, یہ مسئلہ تو ڈاکٹر جان کبرزی کو بھی پتا تھا. تو ان کا کمال یہ ہے کہ مائنڈفلنس ہر آدمی کی ضرورت ہے. تو اس نے کمال یہ کیا کہ اس کو موڈیفائی کر کے اس نے 2 مہینے کے کورس میں جمع کر دیا. اب آپ جو ہے وہ جائیے اور ان کی ویب سائٹ, اب یہ پورا ایک الگ ادارہ بن چکا ہے. اس ویب سائٹ پہ جائیے, آپ جو ہے انرول کرائیے, دبئی میں بھی اور دیگر بھی پوری دنیا میں جو ہے. پاکستان میں جو ہے قریب جو ہے وہ دبئی ہے, جہاں پر جا کے جو ہے آپ باقاعدہ جو ہے وہ ان کی آن لائن اویلیبل نہیں ہے, آن لائن ان کا ابھی تک نہیں ہے. مسئلہ بھی اس سے حل ہو سکتا ہے. جی بالکل یقیناً. اوور تھنکنگ کے میرے پاس کئی لوگ ہیں اور ان کا جو ہے یہ مسئلہ بہت آرام سے حل ہوتا ہے. کیا آپ یقین کریں گے کہ میرے پاس جو ہے کچھ گروپس میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ مائنڈفلنس کو کینسر کے مریضوں تک پر جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مائنڈفلنس جو ہے, جب کیونکہ کینسر کے مریضوں میں وہ تکلیف میں ہوتے ہیں اور اس سے وہ تکلیف اس لیے جلدی وہ ہیل نہیں کر پاتے کہ وہ ریزسٹ کرتے ہیں اور شدید درد ہوتا ہے نا. تو آپ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں, یار عرفان صاحب بیٹھی کی بات کر رہے ہیں, اتنا شدید درد ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں ایکسیپٹ کر لو, لیکن ایکسیپٹ کیے بغیر چارہ نہیں. تو وہ ان کو جو ہے نا وہ دوا نہیں ہے لیکن وہ جلدی ہیل کر لیتے. جی سر, یہ جو ہم بایولوجیکل کلاک سے اگینسٹ چل رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ آپ ہمیں بتائیں اور گائڈ دیں, کیونکہ یہاں 90% لوگ بھی آپ کو نا بایولوجیکل کلاک کے اگینسٹ کے اندر آئے ہیں, کیونکہ اللہ نے دن کام کے لیے اور رات سونے کے لیے بنے. ہمارے یہاں رات شروع ہوتی 4 بجے کے بعد سونے کے لیے, تو اس کا افیکٹ بھی ہمارے لیکن لوگ لکھ تو بہت کچھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ اور بول بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے. ایسے اس کے لیے تو صرف دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ جو ہے ان لوگوں کو یہ شعور دے دے کہ وہ اپنے کمر میں چھرا جو ہے گھونپنا بند کر دیں یا اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارنا بند کر دیں. اس کے لیے کوئی میڈیٹیشن, کوئی سی چیز, کوئی پروگرام سب سے پہلے تو اس آدمی کو یہ نیت کرنی ہوگی. سر نیت تو ہوتی ہے, نہیں نیت نہیں ہوتی, پریکٹیکل نہیں ہوتا, نیت نہیں ہوتی.
प्रैक्टिकल इसलिए नहीं होते कि उसके अंदर फियर ऑफ फेलियर का होता है, उसके लिए अलग सेमिनार। सही सर, लेकिन सर नियत नहीं होती, आपने सही कहा, क्योंकि अगर नियत हो तो फिर कोई फिर प्रोग्रेस तो होगी अल्लाह ना। ताला सब रास्ते आसान करते हैं। नियत साफ है तो मंजिल आसान, जी, ऐसे तो नहीं कहते। जी जी। अब वो कहते थे ना जी जी देखिए, अगर आप किसी को तरगीब देना, जी जी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, ठीक है। अब कोशिश का मतलब ये है कि है जो कभी नहीं आती। मैं नहीं करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है। अब मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल हूँ, मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे ज़रा पानी पिलाइएगा, आप ये कहें, आप ये कहें जी मैं कोशिश करती हूँ, ये तो ना होने का मतलब है आप पानी पिलाना नहीं मुझे पानी पिलाएंगे। तो जिस शख्स ने ये कहा ना कि मैं कोशिश करूँगा करूँगी, इसका मतलब है वो नहीं करेगा, तयशुदा बात है जी। ये मल्टी जो टास्किंग है, क्या माइंडफुलनेस मल्टीटास्किंग को negate बिल्कुल करता है? एक दूसरे यानी मल्टीटास्किंग जो है, माइंडफुलनेस जो हमें लाइफ स्टाइल देती है उसमें हमें 2-3 चीज़ों का बुनियादी तौर पे ख्याल रखना है, जिसमें से एक चीज़ जो है वो मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी की इंतहाई बड़ी दुश्मन है, इंतहाई बड़ी दुश्मन। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप जब आप फ़ोन से आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आपको जो है वो कोशिश करें, अगर आपका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो सोशल मीडिया से नहीं है, यानी आपका बिजनेस ऐसा नहीं है, आपका काम ऐसा नहीं है कि आप जो है सोशल मीडिया आपकी ज़रूरत है तो सोशल मीडिया अपनी ज़िंदगी से निकालते हैं। अभी 24 अप्रैल को तो मेरा जो फेसबुक अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया, और आप यकीन करें मैंने उसको जो है वो दोबारा उसको एक्टिव कराने के लिए कोई कोशिश नहीं की। मैंने कहा फस कम जहाँ पाल, क्योंकि जब हालांकि मेरी सारी मार्केटिंग जो है सोशल मीडिया के ज़रिए से होती है, उसके बावजूद कंटेंट संभालने, स्लाइड तैयार करने से लेकर पोस्ट करने तक जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब पे मैं जो रोज़ाना 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं देता था। अब वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है। दूसरा काम आप अगर इसलिए सोशल मीडिया अगर सिर्फ बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, नहीं अगर नहीं कमाए, अगर मैं सोशल मीडिया पे नहीं बढ़ा तो पैसा नहीं आएगा मेरे पास, तो फिर आप सोशल मीडिया को तलाक दे दें। दूसरा काम ये करेंगे आप व्हाट्सएप आप अपने 2 वक्त तय कर लें। अगर आप ज़्यादा बिजी हैं व्हाट्सएप के लिए आप 2 वक्त तय कर लें कि मैंने सिर्फ 2 वक्त में अपना व्हाट्सएप चेक करना है, सुबह का वक्त और रात का वक्त। क्यों? व्हाट्सएप जो है हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि व्हाट्सएप जब इजाद हुआ और आज भी वो इमरजेंसी कम्युनिकेशन की चीज़ नहीं है। आज हम जो है हर 5 मिनट के बाद जो है व्हाट्सएप चेक कर रहे होते हैं। अगली चीज़ ये कि हमारा जो डाटा है, हमारा मोबाइल का डाटा बंद रहना चाहिए, इल्ला ये कि हमें जो है कोई खास चीज़ चेक करनी है। अगली चीज़ ये है कि आपके जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं आपके, उन सब के नोटिफिकेशंस जो हैं कभी भी ऑन ना हो। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आपको दूर कर देती है। माइक्रोसॉफ्ट की एक रिसर्च हुई, उस रिसर्च में उन्होंने ये बताया कि एक आदमी जब अपने काम कर रहा है तो काम करते करते जब वो सिर्फ एक नोटिफिकेशन आता है और वो चेक करता है तो दोबारा उसी लेवल पर फोकस करने में आपको पता है कितने मिनट लगते हैं? 15 मिनट। क्वालिटी ऑफ फोकस चेंज हो जाता है। क्योंकि आप जो है वो, इसका मतलब ये कि आपने जो है सिर्फ 1 सेकंड का नोटिफिकेशन चेक किया, लेकिन आपने 15 मिनट अपनी ज़िंदगी के बर्बाद कर दी। और हम कहते हैं यार पता नहीं काम नहीं होकर दे रहा। ये 4-5 मोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। आपने बाकी सवालात इनफॉर्मली चाय पे कर दिए। ये तो हमारी छोटी सी काविश थी जो मुझे पसंद आई होगी। अच्छा, ये किताब हमने जो है तर्जुमा की बहुत अच्छी, जैसा गुमान वैसे होता एज यू थिंक, जैसा आप सोचते हैं वैसे हो जाए। इसकी डिटेल है, 1000 रुपये इसकी प्राइस है, आज 800 रुपये। कुछ कलमात आपके। कैसे हैं आप लोग सब? मुझे पूरा यकीन है आप लोग इस वक्त बहुत अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं। हम नेक्स्ट टाइम जो है वो यहाँ पे कूलर्स वगैरह का इंतजाम करेंगे। हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे। हमने बहुत कम लोगों का इंतजाम किया हुआ था, तो बहुत खुला हुआ था उस वक्त। लेकिन आई एम वेरी सॉरी आप लोगों की इनकन्वीनियंस का। लेकिन आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया होगा। और नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह जब हम अरेंज करेंगे तो आप लोग ज़रूर आएंगे।
माइंडफुलनेस ऐसी चीज़ है कि जो हमारे लिए किसी को अवेयरनेस है नहीं. यहाँ पे तो जितने लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह से सब यकीनन माइंड साइंसेस के होंगे और सब यकीनन अवेयर होंगे इस चीज़ से. लेकिन मैं ये चाहूँगी आप लोगों से बोलना ये था कि इस चीज़ की अवेयरनेस फैलाएं. आप लोग यहाँ पे सिर्फ सुन के ले जाके अपने अंदर ना रखें, निकालें उसको बाहर, दूसरे को भी दें. जो सामने आए उसको बोलें, जो सामने आए उसको बोलें. क्योंकि बहुत लोगों का ये ख्याल है. मेरे कज़न है अमेरिका से आए, काफ़ी पहले की बात बता रही हूँ आपको. तो उन्होंने मुझसे यूँ एक सवाल किया कि नुसरत मुझे ये बताओ कि ये इसका डायबिटीज़ का क्या इलाज है, क्या फैमिलियल होती है? मैंने कहा नहीं, फैमिलियल तो नहीं होती. तो फिर मैंने कहा यहाँ से होती. तो कहने लगे कि फिर क्या करें उसका? मैंने कहा मेडिटेशन किया करें या योगा ज्वाइन कर लें या मेडिटेशन ज्वाइन कर लें. वो ज़रा बड़े अमेरिकन एक्सप्रेस के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे. तो वो कहने लगे तुम्हें मेडिटेशन पता है क्या होता है? मैंने कहा मैं खुद करवाती हूँ मेडिटेशन. मैंने आपसे पूछा, कहने लगे जी मुझे पता है. पाकिस्तान में किसी को पता है कि मेडिटेशन क्या होता है? मैंने यहाँ बहुत लोगों को पता है, लेकिन ना उसको लोग प्रैक्टिस करते हैं, ना उसके कोई बेनिफिट्स लेते हैं और ना उसको फैलाते हैं. हमारे यहाँ इस चीज़ को नॉलेज देने को पता नहीं क्यों लोग इतनी कंजूसी से लोग दूसरे को नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं कि वो आधा तो खा जाते हैं. और अमूमन ये होता है कि जैसे चाहे वो मैं ही हूँ, मेरी जैसे अगर वो इंस्ट्रक्टर्स होते होंगे ना कि जो एक वर्कशॉप कराया, दूसरा वर्कशॉप कराया, तीसरा वर्कशॉप कराया, तीसरा पाँचवें में काट देंगे ना आधा सामान काट देंगे उसमें से. फिर बोलेंगे नहीं ये लोग इंटरेस्ट नहीं लेते. आप बताएंगे उसमें से तो लोग इंटरेस्ट लेंगे ना. लोगों को बताएं कि आप इंटरेस्ट लें और दूसरों को भी बताएं, उसके बेनिफिट्स बताएं. क्योंकि हम लोग जो है सिर्फ प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हैं, हम लोग उसके सल्यूशंस पे फोकस नहीं करते. आप मुझे बताइए दुनिया में चाइना इतने ताले बनाता है, हर ताले के साथ बगैर चाबी के दे देता है? वो नहीं देता ना. हर ताले के साथ 2 या 3 चाबियाँ होती हैं. अब 4 होने लगी. अब 4 होने लगी. तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ताले पे फोकस कर रहे होते हैं. यार ताला बंद है, ताला बंद है, ताला बंद है. अरे भाई बराबर में चाबी भी तो रखिए ना, उसे खोलो ना. हम उस प्रॉब्लम को देख देख के उसको इतना फीड करते हैं, उसको इतनी एनर्जी देते हैं कि वो फूल फूल कितना बड़ा हो जाता है, चाबी उसके नीचे कहीं छुप जाती है. तो वो हम वो चाबी को निकालते ही नहीं, देखते ही नहीं. तो डोंट. अभी रिसेंटली मैं आपको एक बहुत अजीब सी एक बात बताऊँ. मेरी नवासी है माशाल्लाह से, सेकंड नंबर की जो है, बड़ा नवासा तो बड़ा है, सेकंड नंबर की जो माशाल्लाह से 12 इयर्स की है. वो मेरी बेटी के साथ बचपन से वो देखती आ रही है, वो मेडिटेशन और कैंडल लाइटिंग और ये और वो. आजकल मैं केस डील कर रही है कि किसी सिंधी वडेरे ने एक साहब को पकड़ा हुआ है, उनकी बेगम परेशान हो, मेरी बेटी के पास आई कि वो प्लीज़ कुछ करें, आप स्पिरिचुअली कुछ करें, ये करें, वो करें, वो करें. तो मेरे साथ 2-3 हफ्ते हो गए इस केस को चलते चलते, मैं भी इन्वॉल्व हूँ उसमें. तो उस दिन कैंडल्स जला के मेरी बेटी साहिबा बैठी हुई थी. तो कहने लगी मम्मा मुज़ना ने एक अजीब बात बोली. मैंने क्या बात बोली अजीब? कहने लगी मुज़ना ने कहा कि वाई आर यू, हमारे नवासे जो सिर्फ अंग्रेजी स्पीकिंग है, आई एम वेरी सॉरी, मुझे खुद अफसोस होता है इस बात पे कि वो खुदा के लिए उर्दू बोल लो. तो वाई आर यू जस्ट फोकिंग ऑन दैट अंकल हु इज बीइंग अरेस्टेड? वाई आर यू फोकसिंग ऑन द, जस्ट स्टॉप फोकसिंग ऑन दैट अंकल. आयशा ने कहा कि अच्छा फिर क्या करें? तो कहेंगे स्टार्ट फोकसिंग ऑन द मनी दैट ही हैज़ टू रिटर्न टू दैट पर्सन. उस पर सोल्यूशन बताया. 12 साल की बच्ची है माशाल्लाह से. शी नोज कि यू हैव टू फोकस ऑन द सोल्यूशन. सोल्यूशन यही है कि जब तक बड़ेरे को पैसे दे देंगे तो वो उनको छोड़ देगा, क्योंकि उन्होंने उनसे उधार लिया हुआ है. वो पैसे नहीं देगा तो वो उनको नहीं छोड़ेंगे. हम लगे पड़े वो ठीक रहे, उसको कुछ ना हो, वो निकल आए. अब निकलेगा कैसे जब तक पैसे नहीं आएंगे? जिस सोर्स से आप पैसे मंगवा रहे हैं उस सोर्स के ऊपर फोकस करें. वो बंदा तो वहाँ बैठा हुआ है ना, उसने उसको बांध के बिठाया हुआ बैठा है. तो जस्ट फोकस ऑन द सोल्यूशन, डोंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम. ठीक, ये मेडिटेशन में अगर जाके आप लोग ये काम करें तो मेडिटेशन जितनी पावरफुल चीज़ है हम लोग उसको नहीं समझते. चाहे वो नमाज में हो मेडिटेशन, दुआ का हो मेडिटेशन, कैंडल लाइटिंग हो, आपकी प्राणास हो, व्हाटएवर, जिस तरीके का आप मेडिटेशन करना चाहें. खामोश बैठ के आप आसमान को ही देख लें, वो भी मेडिटेशन है. पंखा सुन लें, वो भी मेडिटेशन है. लेकिन हम लोग इस चीज़ की पावर को समझते नहीं है, कितनी पावरफुल ये चीज़ है और ये कितनी रिलैक्सिंग होती है और कितनी सारी बीमारियों को हमारे हील करती है. ठीक, फिर इंशाल्लाह ताला कभी मुझे मौका मिलेगा गिलानी साहब है. हाँ हाँ, तो इसका भी थैंक यू करना ही है बिल्कुल.
क्योंकि मैं डॉक्टर साहब को सुन तो नहीं पाई क्योंकि मैं सुबह से खुद एक वर्कशॉप में गई हुई थी वर्कशॉप नहीं था एक्चुअली कॉन्फ्रेंस थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने इतनी थोड़ी सी इनकन्वीनियंस जगह में आपने लेक्चर दिया, और आई होप कि आपने लेक्चर देना एंजॉय किया होगा, जब भी तो सुनने वालों ने भी एंजॉय किया, क्योंकि जब तक बोलने वाला एंजॉय नहीं करे सुनने वाला एंजॉय नहीं करता। वो शौक से दे रहे थे लेक्चर, तो आप लोग शौक से दे रहे थे। शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे।